اور ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ حکومت نے ماہ رمضان میں کم آمدنی والوں کو بڑا تحفہ دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نادار افراد کے لیے 20 ارب روپے کا رمضان پیکیج بذریعہ ڈیجیٹل والیٹ دیا جائے گا۔ پروگرام سے 40 لاکھ خاندانوں کو فائدہ ہوگا۔ رمضان پیکیج کی تقسیم جاری ہے۔ پیکیج کی تقسیم اور شفافیت کے بارے میں مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے سے۔ حکومت کی جانب سے عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری، رمضان پیکیج کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور رمضان پیکیج کے ذریعے اس بار عوام کو 10,000 روپے سے لے کر 20,000 روپے تک کی امداد کی تقسیم کی جا رہی ہے، اور یہ قسطیں آپ کو ایک نہیں بلکہ 2 علیحدہ قسطیں ملنے جا رہی ہیں، اور یہ دونوں قسطیں لینے کے لیے آپ کو علیحدہ رجسٹریشن کروانی ہوگی، کیونکہ رمضان پیکیج کی 2 علیحدہ پروگرامز ہیں جن کے تحت آپ کو 10,000 روپے کی 2 قسطیں مل سکتی ہیں، اور رمضان پیکیج کی یہ دونوں قسطیں حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس صرف 2 چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر آپ کا اوریجنل شناختی کارڈ ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ کے شناختی کارڈ کے ساتھ رجسٹرڈ کسی بھی نیٹ ورک کی سم ہوگی، تو اس سم اور شناختی کارڈ کا استعمال کر کے آپ رمضان پیکیج کی قسطوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف شادی شدہ مرد یا پھر شادی شدہ خواتین کے شناختی کارڈ اور سم کا استعمال کر کے یہ رمضان پیکیج کی قسطیں وصول کی جا سکتی ہیں۔ تو اب آپ لوگ ان رمضان پیکیجز کی قسطوں کو کیسے حاصل کر سکیں گے، ان کے لیے رجسٹریشن کیسے کروانی ہوگی، کن کن لوگوں کو اہل کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نگہبان کارڈ دیے جا رہے ہیں، یہ کافی سارے لوگوں کو نگہبان کارڈ ملنا شروع ہو چکے ہیں، اور یہ کارڈ جن لوگوں کو بھی ملیں گے ان کو حکومت کی جانب سے اس بار رمضان پیکیج کے طور پر بھی 10,000 روپے دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ اگلے 5 سالوں کے دوران اگر حکومت کی جانب سے کوئی اس طرح کی سکیم شروع کی جاتی ہے یا شارٹ ٹرم کا کوئی پروگرام شروع کیا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے جو بھی امداد آئے گی وہ بھی آپ کو اسی نگہبان کارڈ کے اندر ملے گی۔ تو یہ نگہبان کارڈ لینے کا کیا طریقہ کار ہے، کن کن لوگوں کو یہ کارڈ مل رہے ہیں، اس کارڈ کی رجسٹریشن کیسے ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو مکمل طریقہ کار اور مکمل معلومات فراہم کریں گے، اور کارڈ آپ کو کہاں سے ملے گا، کارڈ لینے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کون کون سی چیزوں کا ہونا لازمی ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیلات فراہم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو تمام رمضان پیکیجز کے حوالے سے علیحدہ معلومات فراہم کریں گے، کیونکہ اس وقت رمضان پیکیج کے کافی سارے پروگرام چل رہے ہیں، جیسا کہ پنجاب حکومت نے صوبہ پنجاب کی عوام کے لیے رمضان پیکیج شروع کیا ہوا ہے، سندھ حکومت نے سندھ کی عوام کے لیے رمضان پیکیج شروع کیا ہے، KPK اور بلوچستان کی حکومتوں نے بھی اپنے اپنے صوبے کے لیے علیحدہ رمضان پیکیج شروع کر رکھے ہیں۔ تو ان تمام رمضان پیکیجز کے حوالے سے علیحدہ معلومات بھی آپ کو ملیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی جانب سے میاں شہباز شریف صاحب نے بھی رمضان پیکیج کا آغاز کیا ہے، تو اس رمضان پیکیج کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کی جانب سے ایک اور بہت بڑی سکیم شروع کی گئی ہے۔ اس سکیم کے تحت جن خواتین کو اہل کیا جائے گا انہیں 50,000 روپے سے لے کر 1,00,000 روپے تک کی پیمنٹ ملے گی، اور یہ بالکل ایک امدادی رقم ہوگی، اس کی کوئی واپسی والا سسٹم نہیں ہوگا۔ تو یہ سکیم کن خواتین کے لیے ہے اور اس میں رجسٹریشن کیسے ہوگی، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو مکمل تفصیلات فراہم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان پیکیج کے تمام امدادی پروگراموں کے حوالے سے بھی ہم آپ کو مکمل تفصیلات فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں، اور YouTube چینل سچ فار یو کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو آل پر سلیکٹ کر لیں، تاکہ حکومتی امدادی پروگراموں کے حوالے سے اتھینٹک معلومات آپ سب لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم آپ کو YouTube چینل سچ فار یو پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب آپ سب لوگوں کے لیے وہ خوشخبری آ چکی ہے جس کا آپ سب لوگ انتظار کر رہے تھے، کیونکہ حکومت کی جانب سے رمضان پیکیج کی قسطوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے نگہبان کارڈ کی تقسیم کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس کارڈ کے ذریعے ہر خاندان کو 10,000 روپے کی امداد ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام صوبائی حکومتوں کی جانب سے بھی رمضان پیکیجز پر کام شروع ہو چکا ہے۔ لوگوں کے اکاؤنٹ میں یہ پیمنٹ جانے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اب آپ سب لوگوں کے اکاؤنٹس میں اور اس کارڈ کے ذریعے آپ کو 10,000 روپے کی 2 قسطیں رمضان پیکیج کے طور پر ملنے جا رہی ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی یہ کلیئر کر دیا ہے کہ رمضان پیکیج کی 10,000 روپے کی 2 قسطیں ہیں، اور یہ رمضان پیکیج کے 2 علیحدہ پروگراموں سے آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ رمضان پیکیج کے ان دونوں پروگراموں میں اہل ہوں گے تو آپ کو یہ دونوں قسطیں ملیں گی۔ اگر آپ رمضان پیکیج کے ایک پروگرام میں اہل ہوں گے تو پھر آپ کو 10,000 روپے کی 1 قسط ملے گی۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پر ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ رمضان پیکیج کے مختلف قسم کے پروگرامز چل رہے ہیں، اور ہر پروگرام کی رجسٹریشن بھی علیحدہ ہے، اور اس کے ذریعے امداد لینے کا طریقہ کار بھی بالکل مختلف ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پر ہم ایسے رمضان پیکیج کے حوالے سے آپ کو معلومات دینا چاہیں گے جو کہ پورے پاکستان کی عوام کے لیے ہے۔ تو یہ رمضان پیکیج شہباز حکومت کی جانب
जानिब से पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए शुरू किया गया है। इसमें इस बार तकरीबन 60 से 70 लाख घराने अहल होने जा रहे हैं और इस रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार के बारे में भी आपको क्लियर तौर पर बताते चलें कि सबसे पहले तो इस रमज़ान पैकेज के लिए जो शार्ट कोड बहाल किए गए हैं वो एक 8171 है और दूसरा 9999 यानी कि 9999 वाला शार्ट कोड बहाल किया गया है। इन्हीं दो कोड्स के जरिए आप लोगों को इस रमज़ान पैकेज की अहलियत के बारे में आगाह किया जाएगा। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस रमज़ान पैकेज में 3 किस्म के लोग अहल हो रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर वो लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं और उनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे भी मिलते रहते हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर पर वो लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन उनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते। और ये वो लोग हैं जो बेनज़ीर प्रोग्राम से पैसे नहीं ले रहे लेकिन वो लोग गरीब और हकदार हैं, तो उन लोगों को इस रमज़ान पैकेज के ज़रिए ये 10,000 रुपये तक की इमदाद ज़रूर मिलेगी। और तीसरे नंबर पर वो लोग भी इस रमज़ान पैकेज में अब अहल हो सकेंगे जिनका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे नहीं है। उनकी रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हुकूमत की जानिब से 8171 या 9999 का शार्ट कोड बहाल किया जाएगा। इस कोड पर आप लोग अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे तो फिर आपको इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जाएगा। तो इस हवाले से अभी हुकूमत की जानिब से फाइनल नोटिफिकेशन का इंतज़ार है। जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, फिर आप लोग अपने शनाख्ती कार्ड और सिम के ज़रिए इस रमज़ान पैकेज में भी अहल हो जाएंगे। क्योंकि अभी हुकूमत की जानिब से एक अहम फैसला किया जा रहा है कि जिन लोगों का बेनज़ीर प्रोग्राम में अंदराज नहीं है लेकिन वो लोग गरीब और हकदार भी हैं तो उनको भी किसी न किसी तरीके से ये इमदाद मिलनी चाहिए। तो उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए शार्ट कोड बहाल करने का फैसला किया जा रहा है। तो अब इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि इस रमज़ान पैकेज के ज़रिए आप लोगों को पिछले साल 5-5 हज़ार रुपये मिले थे और काफ़ी सारे लोगों को ये पैसे अकाउंट सिस्टम के ज़रिए दिए गए थे। यानी कि कुछ लोगों के अकाउंट में पैसे इस तरह से आए थे जिस तरह हम एक दूसरे को ईजी पैसा या जैज़ कैश वाले अकाउंट में पैसे भेजते हैं। हुकूमत की जानिब से इस तरह 5,000 रुपये की रकम लोगों के ईजी पैसा जैज़ कैश के अकाउंट में मुंतकिल की गई थी। तो अब जो है कि इस बार आप लोगों के लिए ये पैसे मुकम्मल तौर पर डिजिटल सिस्टम के तहत आएंगे, यानी कि आपके अकाउंट में ये पैसे आ जाएंगे। तो अकाउंट में पैसे हासिल करने के लिए आप लोगों की सिम और शनाख्ती कार्ड के साथ अगर इजी पैसा या जैज़ कैश का या इस तरह का कोई भी वैलेट अकाउंट बना हुआ होगा तो आपके पैसे उसी अकाउंट में आ जाएंगे। और ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए कि ये रमज़ान पैकेज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ मुंसलिक है। तो बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे जिस ज़िला में जिस बैंक के थ्रू दिए जाते हैं, यानी कि अगर आपके ज़िला में बेनज़ीर प्रोग्राम वाले पैसे इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू आते हैं तो फिर आपकी सिम और शनाख्ती कार्ड के साथ इजी पैसा जैज़ कैश का अकाउंट होगा तो आपके पैसे उस अकाउंट में आएंगे। और अगर आपके ज़िला में HBL कनेक्ट के थ्रू बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे दिए जाते हैं तो फिर आपके सिम शनाख्ती कार्ड के साथ HBL कनेक्ट का वैलेट अकाउंट होगा तो आपके पैसे उस वैलेट अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस तरीक़ाकार से हुकूमत की जानिब से आप लोगों के पैसे अकाउंट सिस्टम के ज़रिए भी दिए जाएंगे। बाकी जिन लोगों के इस तरह के अकाउंट नहीं होंगे उन लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि उनको कोई नया अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोगों की सिम और शनाख्ती कार्ड पर पैसे भी आ जाएंगे और ये पैसे निकलवाने के लिए उन्हें करीबी रिटेलर शॉप पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर खातून की फिंगरप्रिंट की वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद उसे भी ये पैसे जारी कर दिए जाएंगे। तो जी हाँ नादरीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि इस रमज़ान पैकेज की अहलियत मालूम करने का क्या तरीका है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत आसान तरीकाकार है। इसके लिए आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल सर्च में ऑप्शन में जाना है। सर्च बार में आपने लिखना है 8171 वेब पोर्टल। जब आप ये सर्च करके लिखेंगे तो आपको आगे पोर्टल का लिंक मिल जाएगा। पोर्टल को आप ओपन करेंगे तो फिर आपको शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने की जगह भी दी जाएगी और साथ 4 अंकों का कोड लिखने की जगह भी दी जाएगी। तो आप लोग अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लेंगे और कोड दर्ज कर लेंगे। और इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि वो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है जो बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे में रजिस्टर्ड है, क्योंकि सिर्फ बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे वाले शनाख्ती कार्ड्स का डेटा इस पोर्टल पर बताया जाता है। तो उसको आप मालूम करेंगे तो आप लोगों को रमज़ान पैकेज की अहलियत के बारे में भी बताया जाएगा और बेनज़ीर प्रोग्राम की अहलियत के बारे में भी बताया जाएगा। और ये रमज़ान पैकेज की अहलियत इंशाल्लाह 2-4 दिनों तक इस पोर्टल के ज़रिए बताना शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि इस पोर्टल में भी बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसों की तरह रमज़ान पैकेज के पैसे भी चेक हो जाते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि हर सुबह ही हुकूमत ने भी रमज़ान पैकेजेस का आगाज़ कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले सुबह
पंजाब की बात करेंगे। इस वक्त पंजाब हुकूमत की जानिब से निगहबान रमज़ान पैकेज के तौर पर आवाम में ये निगहबान कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। तो ये निगहबान कार्ड तकसीम होने का सिलसिला आज से शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में लोग ये कार्ड वसूल कर रहे हैं। जिन लोगों को ये कार्ड मिलेंगे उनको इस बार ये 10,000 रुपये की इमदाद भी मिलेगी, और इसके बाद हुकूमत की जानिब से अगर कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू कर दिया जाता है तो इस तरह के शॉर्ट टर्म के किसी भी प्रोग्राम के शुरू होने की सूरत में आपकी जो इमदाद होगी वो डायरेक्ट आपके इसी कार्ड में आएंगी। लिहाजा आप लोगों ने अपने इस कार्ड को संभाल कर रखना है। जब भी आपको कार्ड मिल जाए आप लोगों ने कार्ड को महफूज रखना है। और यहाँ पे आपको कार्ड इस्तेमाल करने का मुख्तसर सा तरीकाकार भी बताता चलूँ, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये कार्ड आप लोगों के प्रिंट हो चुके हैं और ये कार्ड बहुत जल्द आप लोगों के करीबी यूनियन कौंसिल में पहुंचा दिए जाएंगे। जब आपका कार्ड आपके यूनियन कौंसिल में पहुंचेगा तो आपके उस फ़ोन नंबर पर आपको कॉल आएगी, जो फ़ोन नंबर आपने PSCR सर्वे में दर्ज करवाया था। उस फ़ोन नंबर को आप अभी से एक्टिव कर लें, यानी कि इस फ़ोन नंबर को आपने बंद नहीं रखना, क्योंकि किसी भी वक्त आपको ये कॉल आ सकती है। तो जब आपको कॉल मिल जाएगी तो फिर आप लोगों ने करीबी यूनियन कौंसिल में जाना है और अपना शनाख्ती कार्ड और वो फ़ोन नंबर साथ लेकर जाना है, जो शनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर आपने PSCR सर्वे में दर्ज करवाया था। फिर आप लोगों ने यूनियन कौंसिल में जाकर अपना कार्ड हासिल करना है। कार्ड हासिल करने के बाद निगहबान कार्ड एक्टिवेशन सेंटर पर जाना है, या फिर आप लोगों ने किसी भी डिवाइस वाले एजेंट के पास जाकर इस कार्ड की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने के बाद पंजाब हुकूमत का एक व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों ने अपने कार्ड को एक्टिवेट करना है। तो इस व्हाट्सएप नंबर को आप लोग अपने पास अभी से सेव कर लें, क्योंकि जो ही आपका कार्ड आएगा तो आपने इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने कार्ड को एक्टिवेट करना है। तो ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 042 111 267 200 पूरा। ये 12 हिस्सों का व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर को आप अभी से सेव कर लेंगे, तो जो ही कार्ड आएगा आप कार्ड को इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए एक्टिवेट करेंगे, और इसी व्हाट्सएप पर ही आप लोगों के कार्ड का एक पिन कोड होता है वो जनरेट होगा। जब आप अपना पिन कोड व्हाट्सएप के जरिए जनरेट कर लेंगे, फिर आप लोगों ने अपने पिन कोड को अपने जहन में याद रखना है, और ख़ास तौर पर ये पिन कोड आपने किसी दूसरे बंदे को नहीं बताना, इससे आप लोगों का नुकसान हो सकता है। तो जब आपका पिन कोड जनरेट हो जाए फिर आप लोगों ने अपने कार्ड के साथ करीबी बैंक ऑफ पंजाब की ATM मशीन पर जाना है। वहां पर आपने अपने कार्ड को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आप अपना निगहबान कार्ड ATM मशीन में डालेंगे, जहां से इंसर्ट कार्ड का ऑप्शन आपको मिलेगा। वहां पर ATM मशीन में अपना कार्ड डालकर उसके बाद आपने ATM की स्क्रीन पर 4 हिस्सों का वो कोड लिखना है जो आपने व्हाट्सएप के जरिए जनरेट किया था। ये कोड लिखने के बाद 10,000 रुपए की अमाउंट आपने सिलेक्ट करनी है। ये अमाउंट सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप लोगों का कार्ड भी निकल आएगा, और कार्ड निकलने के बाद आपके 10,000 रुपए भी ATM से निकल आएंगे। तो इस तरह से आप लोग अपने 10,000 रुपए निगहबान कार्ड के जरिए हासिल करेंगे। इसके अलावा रिटेलर एजेंट के पास भी ये 10,000 रुपए निकल सकते हैं, लेकिन वहां पर अब ज्यादातर कटौतियां होती हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि ATM के जरिए अपने निगहबान कार्ड वाले पैसे हासिल करें, तो ये आप लोगों के लिए बेहतर है जी। तो अब हम आपको ये बताते चलें कि निगहबान रमज़ान पैकेज के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज शुरू किया गया है, जिसके तहत सिंध की आवाम को 5 से 10,000 रुपए की इमदाद फ़ी घराना दी जाएगी। अगर वहाँ पर सर्वे और रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे को वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इस सर्वे के ज़रिए जो लोग अहल होते हैं उनको 5 से 10,000 रुपए पिछले साल भी मिले थे, इस बार भी उन लोगों को ये पैसे मिलेंगे। और वहाँ पे जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं उनको भी ये पैसे मिलते हैं, और जो बेनज़ीर प्रोग्राम से ना अहल हैं या जिनका बेनज़ीर प्रोग्राम का सिंपल सर्वे हो चुका है उनको भी ये पैसे मिल जाते हैं। तो इस हवाले से वहाँ के लोगों ने भी इस रमज़ान पैकेज को हासिल करने के लिए एक्टिव रहना है। खास तौर पर बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे वाले शनाख्ती कार्ड्स को चेक करें। अगर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हैं तो अपने शनाख्ती कार्ड को रिन्यू करवाएं। इसके बाद जो फ़ोन नंबर आपका है उस फ़ोन नंबर को एक्टिव रखें। तो इसके साथ साथ अब हम आपको ये बताते चलें कि सिंध हुकूमत के बाद KP की हुकूमत की जानिब से भी रमज़ान पैकेज का आगाज़ होने जा रहा है। वहाँ पर 10 से 13 अरब रुपए का बजट है। तो इस बजट के तहत वहाँ पर 12,000 रुपए की इमदाद फ़ी घराना मिलेगी। और अगर वहाँ की रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो वहाँ पर बेनज़ीर प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम वाला सर्वे इस्तेमाल होता है, और इस सर्वे में जो लोग रजिस्टर होंगे उनको ये पैसे मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि वहाँ पर 8123 वाले शार्ट कोड के जरिए लोगों को अहलियत के मैसेजेस भेजे जाएंगे, और इमदाद लेने का तरीकाकार बिल्कुल इसी तरह से होगा जिस तरह लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम वाले पैसे मिलते हैं, यानी कि वहाँ पर रिटेलर शॉप्स के जरिए आपको रमज़ान पैकेज वाली किस्तें मिल जाएंगी। तो जी हाँ नादरीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से भी रमज़ान पैकेज के तौर पर 5 से 10,000 रुपए तक की इमदाद फ़ी घराना मिलेगी। मुफ्त राशन की सूरत में भी वहाँ पे इमदाद जारी की जाएगी। तो बेनज़ीर प्रोग्राम के डेटा के जरिए वहाँ पर भी लोगों को अहल
حاصل کیا جاتا ہے۔ جی تو ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بے نظیر پروگرام کی نئی قسط کا آغاز بھی انشاءاللہ 16 فروری سے ہو جائے گا، لہٰذا جو لوگ اب رمضان پیکج کی قسط کے انتظار میں ہیں اور بے نظیر پروگرام کے پیسے بھی ان لوگوں کو ملتے رہتے ہیں، تو وہ سب لوگ بے نظیر پروگرام کی نئی قسط کا انتظار بھی ساتھ کریں تاکہ آپ لوگوں کو اس بار اچھی خاصی امداد مل سکے۔ تو جی ہاں، اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے ایک اور نئی اسکیم بھی لانچ کی گئی ہے۔ اس اسکیم کا نام ہے بیوہ سپورٹ کارڈ اسکیم۔ اس اسکیم کے ذریعے بیوہ خواتین کو رجسٹر کیا جائے گا، انہیں 1 لاکھ روپے سے اضافی امداد بھی دی جائے گی۔ اس اسکیم کے حوالے سے اس وقت جو ڈیٹا آ چکا ہے، اس کے حوالے سے ہم آپ کو اتھینٹک معلومات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ جو بیوہ خواتین ہوں گی ان کا ولی وارث نہیں ہوگا تو ان خواتین کو 1 لاکھ روپے کی حکومت کی جانب سے امداد دی جائے گی، اور اگر ان خواتین کے بچے ہوں گے تو اگر ان کا ایک بچہ ہوگا تو پھر انہیں 1,25,000 روپے ملیں گے، اگر ان خواتین کا ایک کی بجائے 2 بچے ہوں گے تو پھر انہیں 1,50,000 روپے کی امداد دی جائے گی، یعنی کہ فی بچے کے حساب سے 25,000 روپے اضافی دیے جائیں گے۔ اور اس اسکیم کی رجسٹریشن کے حوالے سے بہت جلد ہم آپ کو مکمل تفصیلات فراہم کریں گے، کیونکہ ابھی اس اسکیم کی رجسٹریشن کا طریقہ کار واضح طور پر جاری نہیں کیا گیا۔ اس کا پورٹل بھی آ رہا ہے، پورٹل کے ذریعے اور اپلیکیشن کے ذریعے آپ لوگ گھر بیٹھے رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ تو آپ کے قریب جتنی بھی بیوہ خواتین ہیں، ان تمام خواتین پر آپ سب لوگوں نے اس معلومات کو پہنچانا ہے تاکہ ان کا فائدہ ہو سکے۔ تو یہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ اسکیم لانچ کی گئی ہے۔ مزید اس اسکیم کے حوالے سے بھی اور رمضان پیکجز کے حوالے سے ہم آپ کو اتھینٹک معلومات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں تھینکس لکھ دیجیے گا۔ ہم آپ کو ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔